Hello everyone, I am Ankita Rai. In the previous lecture, we had discussed about the chapter of microbes in human welfare, and the topic which we have dealt with was microbes, how microbes are used as biocontrol agents. Now, in the last lecture of this chapter, we will be dealing with the usefulness of microbes in the process of production of biofertilizers, or how they are actually being used for biofertilizer purposes. So, microbes as biofertilizers. ना जब हम बायो फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे दिमाग में वो ये कि जब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग होता था या जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस होते हैं, सो दैट जनरली डील्स विद ऑल द काइंड्स ऑफ यूसेज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग होती है उसमें हम इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. एंड एज वी ऑल नो कि जो ये इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर ऑफ केमिकल नेचर, सो सम और द अदर वे दे आर गोइंग टू हार्म द एनवायरनमेंट. They not only harm the water and the soil content, but they are also harmful to the quality and quantity of crops, vegetables and fruits that are actually being grown in the soil. तो कहीं ना कहीं फिर एक चीज़ दिमाग में आई कि भाई क्यों किसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. So unlike the traditional method of farming, the organic farming actually deals with the use of biofertilizers. So organic farming is done by organic farmers, and organic farming is a method जो कि biofertilizers को use करता है. So biofertilizers are actually the fertilizers or actually the biological organisms that enriches the nutrient quality of soil, or that actually enriches the nitrogen content of soil. So unlike the traditional farming practices that uses insecticides and pesticides, organic farming involves the use of biofertilizers. So these biofertilizers are actually the biological organisms that enriches the nutrient quality of soil. तो किसी भी तरीके से ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, दे डू नॉट हार्म नेचर. ये किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करते हैं. दे डू नॉट हैम्पर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स और वेजिटेबल्स or any kind of fruits that are being grown in the soil. So in other words we can say कि ये जो use होता है biofertilizers का, some or the other ways an eco-friendly technique of not only protecting the environment from pollution but also protecting crops and other vegetables from getting contaminated, right? So ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, इन बायोफर्टिलाइजर्स के जो मेन सोर्सेज हैं वो देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, एंड दोज आर फंजाई,
bacteria and cyanobacteria. So these are the three main sources of biofertilizers, which are bacteria, fungi and cyanobacteria. So if we are going to consider the first organism, which is bacteria, bacteria में दो अलग अलग categories आते हैं, ठीक है, and those categories, one will be the free living bacteria जो कि enrich करता है nutrient content या nitrogen content of soil को, and on the other hand the other is the symbiotic bacteria. So the first example which we are going to deal with is that of bacteria or bacterial sources. So in bacteria we have two different categories. One is the symbiotic bacteria and the other is the फ्री लिविंग बैक्टीरिया. तो एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, दूसरा फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है. सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मीन्स दैट बैक्टीरिया विच इज ऑलवेज फाउंड इन एसोसिएशन विथ one or the other plant species. So this the very common example of the symbiotic bacteria is that of rhizobium. Rhizobium एक ऐसा बैक्टीरिया होता है which is always found in association with the root nodules of leguminous plants. तो ये root nodules of leguminous plants के association में पाए जाते हैं and are responsible for fixing atmospheric nitrogen into their organic forms. So symbiotic bacteria includes rhizobium, एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कराने का काम करते हैं. द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इज दिस कैटेगरी, इट बेसिकली इंक्लूड्स टू कॉमन बैक्टीरिया. एक एजोस्पिरिलम होता है और दूसरा एजोटोबैक्टर होता है. नाउ एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, दीज आर टू फ्री लिविंग, कॉमनली फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं. जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे. सो दिस वाज द एग्जांपल एंड कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया. फंजाई में जब हम देखेंगे तो फंजाई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइज़र. और फंजाई में हमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन मिलता है. एंड माइक्रोराइजल एसोसिएशन इज दैट एसोसिएशन with in which this mycorrhizal association is also a symbiotic association, जिसमें कि जो फंगल कंपोनेंट होता है या जो फंगल पार्टनर होता है वो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होता है. एंड दैट्स हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग दी ऑल द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वेदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, उनको वो एब्जॉर्ब कराने का काम करता है एंड मेक्स देम अवेलेबल टू प्लांट स्पीशीज. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ फंजाई. फंजाई में जो हम कॉमन एसोसिएशन लेंगे दैट विल बी माइकोराइजा.
So this mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and roots of higher plants. Now in this process of association, which is symbiotic association, जो fungal partner होता है, that is involved in supplying and absorbing all the phosphorus जो कि soil में present होता है. ये fungal component roots के साथ combine होके, associate होके, जो भी amount of phosphorus soil में present होता है, उसको absorb करके plant roots तक पहुंचाता है, and in return plant is benefited with other advantages also. तो उसमें प्लांट को बेनिफिट ये मिलती है कि इट गेन्स रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, इंक्रीज्ड टॉलरेंस हो जाता है टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एंड उसकी जो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है प्लांट की, वो बहुत अच्छे से इंक्रीज भी होती है. So in return plant gets other benefits also, and those benefits are increased resistance to salinity and drought, increased resistance to insects and pests, and then overall increase in plant growth and development. So these are the three benefits which the plant gets on having an association with fungal species or fungal partner. Now जो mycorrhiza में जो main species involve होता है इस association में, mycorrhiza का association जो बनाता है वो many members of the genus Glomus species. There is a species called Glomus और उसके कई members जो होते हैं ग्लोबेरोमाइटा से बिलोंग करता है, एंड दिस जीनस इज मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस स्पीशीज ग्लोमस स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग दी फॉर एक्टिंग एज अ फंगल पार्टनर एंड गेटिंग एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. So many members of genus Glomus. This Glomus is actually the fungi. So this was about the second example of बायोफर्टिलाइजर जिसमें फंजाई का कैटेगरी आपका आ जाता है, और फंजाई में हमें जो पढ़ना है दैट इज द माइकोराइजा. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट
category of the source of biofertilizer is that of cyanobacteria. Now cyanobacteria की जब हम बात करते हैं तो cyanobacteria एक ऐसा blue green algae है और एक ऐसा बैक्टीरिया है which is mostly found in the terrestrial as well as in aquatic environment. So this is a category of blue green algae or bacteria which is found which is of autotrophic nature का होता है and which is widely found in terrestrial as well as in aquatic environment. कई स्पीशीज़ जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, दैट आर वाइडली यूज्ड एज द सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. अगर हम प्रोमिनेंटली बोले तो राइस फील्ड्स, जो पैडी फील्ड्स होती है, उसमें ये साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज बायोफर्टिलाइजर्स. सो द लास्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल इज दैट ऑफ साइनोबैक्टीरिया. जो कॉमन एग्जाम्पल्स होंगे साइनोबैक्टीरिया के, those are nostoc, Anabina, and Oscillatoria. सो ये वाइडली, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो बैक्टीरिया होते हैं बायोफर्टिलाइजर्स के लिए वो नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया हो जाएगा. पैडी फील्ड्स में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. इनको कॉमनली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एनरिचमेंट का तो काम करते ही हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल का एनरिचमेंट तो कराते ही हैं, बट ऑन द अदर हैंड दे आर वन और द अदर वे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो ये कहीं ना कहीं जो भी मिनरल्स हैं या जो भी कंपोनेंट है सॉइल के, उनका रिप्लेनिशमेंट का काम भी करते हैं. वो आयंस या वो मिनरल्स जिनका जो डिप्लीट हो चुका है, सो उनके रिप्लेनिशमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कराने का काम करते हैं. सो दिस वाज अबाउट द यूसेज ऑफ माइक्रो, दिस वाज द लास्ट एग्जांपल जो कि हमें डील करना था कि 3 कैटेगरीज थे माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज द सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड इस टॉपिक के साथ वी हैव एक्चुअली कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ दिस चैप्टर इज एक्चुअली
completed. So in this overall in this chapter we have dealt with how किस तरीके से microbes household products से use होते हुए किस तरीके से इनको सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, किस तरीके से दे आर इंडस्ट्रियली यूज्ड एंड देन अल्टीमेटली दे वर यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए हम इनको यूज़ किए थे, एंड देन एज बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हैं, एंड फाइनली दे आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड as the source of biofertilizers. So this one thing that comes to our mind is कि इससे हमें ये पता चलता है कि microbes since they are of cosmopolitan nature, widely distributed होते हैं, so besides being harmful, but there are many of the microbes that plays very important role. ये हमारे domestic life में, ये हमारे commercial life में, ये हमारे जितने भी day to day की activities हैं, या जो भी ऐसे important areas जो कि eco-friendly manner में work कर रहे हैं, उनमें भी ये बहुत important role play करते हैं. So thank you very much and have a great day.